Okay, so good afternoon, both of you. And this is now our fifth session on semiconductor control drives. Okay, so are you able to, get the benefit of whatever is being supplied through Moodle and the lecture notes and the recordings, etc.? Yes, ma'am. So make use of it. This is a weekly actually pattern of learning. In this, you will be able to absorb the concepts instead of mugging up or instead of learning too many things. Just concentrate on the concepts. And quiz also is based on all the quiz assignments are also conceptual rather than mathematical derivations and all. We are not focusing on that because if you need, you can do that anytime. There are so many books available and you have to understand the thing actually what is happening. Okay, so the session outcomes may be for the next two lectures. Today we have only one lecture. So the outcomes of the session are what we are planning is, now we are starting the AC to DC converters. So you will be, after these lectures, you will be able to select a proper converter for a given DC drive based on the application. That is, you will know which type of DC drive is being, DC motor is being used, or which type of application is there. So whether you should go for converter, whether you should go for chopper, and if you go for converter, then there are many types of converters. So which converter you should choose, okay? So this you will be able to select because you will know about in the first outcome. Actually, you will achieve the first outcome only after you know how many types of converters are there and what are their relative merits, demerits, where it can be used. So that is the way we are going to move ahead. Second is you will be able to compare or you will be able to differentiate between available AC to DC converters. This is also actually within that first point only. When you know about different converters, then only you will compare and then only you will select. Okay. So these two are actually quite one and the same. Actually, the first one should be on top. I'll correct it also in the next. Then thirdly, you will be able to identify the different modes of operation. You see, with understanding of the associated factors, not just that you list the modes कि आप बोल देते हैं कि motoring mode है, generating mode है, forward motoring या reverse motoring, है ना? All these continuous current mode, discontinuous current mode, ये different type के modes हैं. So just उनका नाम देने से नहीं चलेगा. So you will be able to understand कि what are these different modes. मतलब ये क्यों होते हैं, इनका क्या reason है, इनका क्या effect है. Okay, so both. What are the reasons of these modes, like how do you go to those modes, and what are the advantages or disadvantages of continuous current mode, discontinuous current mode, etc. So all this actually is combined for lecture 5 and 6. Whatever we are not able to cover today, we will cover on the next class, that is on the Monday, because today we have only one session. Now you will be able to draw the various waveforms and you will also understand why the waveforms are being drawn like that. That if you understand what is happening, so any type of converter is given to you, you will be very easily able to plot the waveform of output voltage waveform. Okay, you know the firing angle and you will be able to draw the waveform because you have understood what is happening. And you will be able to draw the current waveform. You will be, usi pe se, if you draw the waveform, then you can, by integrating the voltage, you can find out the output DC voltage also. Now remember one thing, in a converter drive, there are two sides. पिछली class में भी we had discussed about the harmonics and all that. So particularly अभी हम लोग AC to DC converters पढ़ रहे हैं. After that we will go to the choppers. Okay, so अभी we are doing this. Hello, Atul, मेरी class चल रही है. So, after this, after the completion of these two, or maybe we'll require one or two more sessions because we have to go till 3-phase drives. So after that, we'll go to chopper. So then you will be able to compare converter and chopper also.
because when you face interviews or when there are some kind of competitive examinations, there nobody is going to ask you to derive the equation. They think that okay, you have studied all mathematics courses, तो अब आप derive तो कर ही लेंगे, अगर आपको मतलब करना पड़े कहीं तो सीख के आप कर ही लेंगे. But they'll be mostly asking you about these things only, that in आपस में चीजों advantages, comparisons, or why if something happens, why that happens. सो यही इसी चीज को कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू फोकस ऑन इट. और आप इसको पढ़ते रहे, आपकी प्रैक्टिस होती रहे, बिकॉज कॉन्सेप्ट को भी पूरे टाइम ब्रशिंग अप की जरूरत होती है, अदरवाइज ब्रेन के पीछे के कोने में चला जाता है. ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर कंडक्टिंग द क्विज ऑल्सो, सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट वॉट एवर यू हैव लर्न, वो आपके दिमाग में पक्का भी होता जाता है, मेमोरी में भी जाता है. So drawing waveforms is not based on like you have to draw the waveforms based on understanding. Then you will be able to distinguish between the motoring and the braking operation. Because ye bhi, if there is a 4-quadrant drive, then there are different types of braking and there are different types of motoring. Like forward में भी motoring होता है, reverse में भी motoring होता है. Forward में भी braking होता है, reverse में भी braking होता है. Okay, so what is the difference and when what happens, मतलब कब ड्राइव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, कब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगी, कब उसको अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्राइव है, अगर आप उसकी स्पीड कम करना चाह रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन लाइक यू कैन टेक इट टू द सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल्सो, ठीक है ना, और यू कैन टेक इट टू द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो किस टाइप की ब्रेकिंग हम करेंगे, तब क्या होगा. There are 3 types of braking, as you know. हालांकि इस लेक्चर में ब्रेकिंग नहीं है एक्चुअली, बट वी कैन जस्ट गो ऑन, चीजों को लिंक करते जाएंगे. सो यू नो देर इज ब्रेकिंग, प्लगिंग होती है, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग होती है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग, प्लगिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग. तो कौन सी ब्रेकिंग जब आप अप्लाई करते हैं तो ड्राइव किस क्वाड्रेंट में होती है, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ जाएगा. सपोजिंग यू डू प्लगिंग, तो देन ड्राइव अभी मतलब आपका ऑपरेटिंग पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो वेयर विल द ऑपरेटिंग पॉइंट गो, वेदर इट विल गो टू सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, विल डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ ब्रेकिंग यू आर एम्प्लॉइंग. ओके, सो ये विल गो इवेंचुअली, हम लोग सब सीखते जाएंगे, बट आपको थोड़ा थोड़ा मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न के बारे में ये पहला स्लाइड जो है, दैट्स जस्ट गोइंग टू टेल यू कि जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट इंटरेस्ट in your mind that what we are going to do in the coming lectures or maybe today's lecture. So lastly, analyze the performance AC to DC converters. Analysis means you are able to find out the voltage, the current for different operating conditions, voltage, current, harmonics, anything. So depending on कौन सी हम performance parameters choose करते हैं, उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर पाएंगे. आप हार्मोनिक्स भी निकाल सकते हैं एक लेवल पे जाकर. देयर इज नो लिमिट. यू कैन फाइंड आउट द current and voltage instantaneous values, you can find out the RMS values, you can find out the average values. So ये सारा analysis, mathematical analysis का part है, जो normally for solving numericals जरूरी पड़ता है. If it is in steady state, तब तो steady state में तो simple equations होते हैं, जो आज हम देखेंगे भी. अगर आपको transient या टाइम मतलब डायनामिक इक्वेशंस चाहिए, स्टडी स्टेट क्या होता है, किसी एक फिक्स्ड t इज इक्वल टू सम t पे, t इज इक्वल टू t1 पे. इफ यू आर फाइंडिंग ऑपरेटिंग कंडीशंस, स्टेबल कंडीशन में, when the load torque is equal to the motor torque and you are finding what is the current, what is the voltage, all that, वो steady state है. Dynamic operation क्या है, when you have changed the voltage or you have changed the load or any other change you have done and the motor has moved from the steady state point and it is in dynamic state, और अब उसको थोड़ी देर के बाद वो फिर से steady state पे आ जाएगी corresponding to that changed value of जो भी पैरामीटर आपने चेंज करी, लोड चेंज किया, तो फिर से मोटर टॉर्क उस लोड टॉर्क के बराबर हो जाएगा जो अब नया लोड टॉर्क है. बट ड्यूरिंग दोज 2 periods, 2 steady state positions, पहले एक steady state थी, फिर आपने चेंज किया तो मोटर डायनामिक में गई, and after that it achieved another steady state corresponding to the new settings. इन बिटवीन अगर आप किसी भी टाइम, मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे आपने कोई चेंज किया और t इज इक्वल टू t1 पे वो स्टेडी स्टेट पे पहुंची करस्पॉन्डिंग टू दैट चेंज. तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t1 के बीच में जो भी t की वैल्यूज आएंगी, मान लीजिए t इज इक्वल टू t1 जो है, t1 है 5 सेकेंड्स,
तो इसका मतलब 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में अगर आपको मतलब सेकेंड 3 सेकेंड पे या 4 सेकेंड पे ड्राइव का वोल्टेज, करंट या कोई भी और पैरामीटर निकालनी है, तो उसके लिए स्टेडी स्टेट इक्वेशन काम नहीं आएंगे. देन यू विल हैव टू राइट द डायनामिक इक्वेशंस. ओके, so you will have to do the dynamic analysis or rather time analysis. उसमें हम क्या कहते हैं, करंट और ब्रैकेट में t, मतलब at a particular value of t you find out the current, that is dynamic. जब ऐसे कोई टीवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, then it is steady state. So you know all these things, but we are just brushing up the concepts. Then अभी तक we were discussing the different drive concepts जो कि introduction जैसा था. Now we start with the converter fed drives. Now converter fed drives means वैसे तो सभी कन्वर्टर होते हैं, AC to DC कन्वर्टर, DC to AC जो इन्वर्टर होता है ना, उसको भी एक्चुअली लार्जर फैमिली तो कन्वर्टर ही है. एवरीबडी इज अ कन्वर्टर. DC to AC कन्वर्टर, AC to DC कन्वर्टर, AC to AC कन्वर्टर, ओके, एंड DC to AC, 4 होते हैं ये. दे आर ऑल कन्वर्टर्स, बट कॉमन बोलचाल की भाषा में AC to DC कन्वर्टर को कन्वर्टर बोला जाता है मोस्टली. मतलब जब हम कन्वर्टर कहते हैं तो बेसिकली वो AC to DC वाले को हम कन्वर्टर कहते हैं. बाकी सबको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर या साइक्लो कन्वर्टर, है ना. इस तरीके से डिफरेंट नेम्स. अगर AC to AC कन्वर्टर है तो वी कॉल इट अ साइक्लो कन्वर्टर. इफ इट इज अ DC to AC कन्वर्टर वी कॉल इट अ इन्वर्टर. है वो भी कन्वर्टर ही, बट उसका नाम है इन्वर्टर. अगर DC to DC कन्वर्टर है तो वी कॉल इट अ चॉपर. और चौथा ये है AC to DC. तो ये जो है इसको हम कन्वर्टर या फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर भी कहते हैं, या लाइन कंट्रोल्ड कन्वर्टर भी कहते हैं. ठीक है, रेक्टिफायर है बेसिकली ये, तो उसको रेक्टिफायर, AC to DC रेक्टिफायर भी बोलते हैं. ओके, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन द नेम्स. यहाँ पर मैं एक स्लाइड और इंसर्ट करूंगी, आई जस्ट मेरे अपने रिमेम्बरेंस के लिए insert a slide on all these converters, on all converters, ताकि completeness के लिए you will have a पूरा, you will know कि कौन सा कन्वर्टर क्या है, क्योंकि कई बार लोग नामों में ही कंफ्यूज होके रह जाते हैं. सो प्लीज डोंट डू दैट. जब इनपुट AC और आउटपुट DC या 2 ही टाइप के पावर होते हैं, AC और DC, तो इनके अगर सभी तरह के मोड आप मिला लीजिए तो 4 ही कन्वर्टर बनेंगे. तो वो चारों कन्वर्टर्स के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे आपको. अब अगेन वी कम टू द कॉन्सेप्ट पार्ट, एंड आई थिंक आई विल मूव टू द फुल स्क्रीन. उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, इजी लगेगा समझना, है ना. So anyway, so next slide is this. Okay, so we move to this slide, and just a minute, I'm searching the annotations and all. Okay, ठीक है. ओके, सो फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स या AC to DC कन्वर्टर जो भी हम कहते हैं, तो दे आर एक्चुअली, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी टाइप ऑफ कन्वर्टर. ये मोटर से भी रिलेटेड है आप, क्योंकि मोटर में यूज होते हैं. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है क्योंकि बेसिकली दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस. ओके, एक लेक्चर में आपका डिवाइसेस पे भी लूंगी कि जो ये कन्वर्टर है, इसमें अगर आपने SCR यूज किया तो आपको क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर IGBT यूज किया तो क्या होगा, अगर ट्रांजिस्टर यूज किया तो क्या होगा, क्योंकि ये बेसिकली स्विचेस हैं. दे कैन बी SCRs, दे कैन बी ट्रांजिस्टर्स, दे कैन बी एनीथिंग. ओके, तो एनीवे, तो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फेज कंट्रोल या लाइन कंट्रोल या लाइन कम्यूटेटेड भी इनको कहते हैं. ये फेज कंट्रोल्ड को लाइन कम्यूटेटेड भी कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट कि दे व्हाट डू दे डू. फर्स्ट थिंग, तो दे प्रोवाइड एन एडजस्टेबल DC आउटपुट फ्रॉम अ फिक्स्ड AC वोल्टेज. ओके, एडजस्टेबल मतलब वेरिएबल DC फ्रॉम ए फिक्स्ड AC. ठीक है, फिक्स्ड AC टू वेरिएबल DC. और वेरिएबल तो हमें चाहिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए, है ना. सो दैट मीन्स कि आप सोर्स से कनेक्ट करके DC मोटर को बेसिकली इससे कंट्रोल कर सकते हैं. इसका मतलब दिस विल बी यूज्ड फॉर अ DC ड्राइव. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज देयरफॉर व्हेन अवेलेबल सप्लाई इज AC, okay, when available supply is AC, phase controlled converters are preferred over choppers who are fixed DC to variable DC converters. तो DC जो चॉपर जो है वो DC to DC कन्वर्टर है, मतलब
इनपुट में फिक्स्ड और आउटपुट में वेरिएबल, तो फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी, दैट इज योर चॉपर। अगर इनपुट कहीं एसी है ऑलरेडी, तो देन फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स मे बी प्रिफर्ड। लेकिन आजकल बात उल्टी है। आजकल क्या है, आजकल डीसी लिंक चॉपर करके एक चीज होती है। तो व्हाट इज डन इज कि पहले एसी टू डीसी कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर चॉपर लगाते हैं। 2 स्टेज, पहले आप एसी टू डीसी कन्वर्ट कर लेते हैं इससे, फेज कंट्रोल कन्वर्टर से, एंड आफ्टर दैट यू अगेन, वो आपको डीसी मिल गया ना, वेरिएबल डीसी, उस वेरिएबल डीसी से फिर आप और दूसरा वेरिएबल डीसी लगाते हैं, चॉपर। So means for controlling a DC drive, we normally have nowadays DC link choppers. लिंक जो है DC लिंक चॉपर में पहले AC को DC में करते हैं, क्योंकि AC अवेलेबल है सब जगह, DC तो है नहीं। Most of the places availability is only AC. So you convert AC to DC and then finally you use chopper. The reason is that chopper has certain advantages which we will discuss later, but keep it in your mind. कि वाई डू यू ऐसा 2 स्टेज क्यों करते हैं भाई, सीधे सीधे एसी टू डीसी कन्वर्टर ही यूज कर लें, डीसी फाइनली डीसी मोटर को ही कंट्रोल करना है। बट नो, व्हाट वी डू इज वी एसी टू डीसी एंड देन डीसी टू अगेन डीसी यूजिंग अ चॉपर, and there are certain advantages which we will discuss later. But as of now, we feel that when available supply is AC, then it is practical to use a phase control converter. ठीक है, जो मैंने आपको डीसी लिंक की बात करी उसके स्पेसिफिक यूजेस हैं, स्पेसिफिक जगह पे हम वैसा करते हैं जब ड्राइव की कॉस्ट वो सब जस्टिफाइड हो। छोटी ड्राइव्स होंगी या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्राइव नहीं होगी, तो यू विल गो फॉर, इफ यू हैव टू कंट्रोल अ डीसी मोटर, बिकॉज इन मेनी एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एटसेट्रा, ओल्ड इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली, ओल्ड जो 20-25 साल पहले जो इंडस्ट्रीज बनी है, तो in all those industries DC drive is used. But nowadays in present industries, hardly anywhere DC drive is being used. Everywhere DC drive or DC motor has been replaced. मतलब ये कन्वर्टर है, लेकिन मोटर जो है AC टू DC कन्वर्टर बहुत यूज होता है, DC टू DC चॉपर बहुत यूज होता है, बट DC ड्राइव को अब कम यूज करते हैं, मतलब DC मोटर को बहुत कम यूज करते हैं, because we have discussed that it has got commutator, it requires lot of maintenance, it is costly. So due to all these reasons, AC motor has replaced the DC motor, but DC drive or DC converter drive remains the basis of all types of drives which we study. Now phase controlled converters, PCC हमने उसका नाम रख दिया, are very simple to operate as compared to choppers. And why are they simple to operate? Because these are less expensive and no commutation circuit is required. ये क्या होते हैं? They are line commutated. They are all phase control का मतलब they are line commutated. जब AC का natural zero आता है, उसी समय ये कन्वर्टर के जो स्विचेस हैं वो ऑफ हो जाते हैं. You do not require any forced commutation circuitry as in chopper. चॉपर तो डीसी टू डीसी है, तो डीसी में कहां से नेचुरल जीरो आएगा? तो दैट इज व्हाई चॉपर्स ऑलवेज यूज फोर्स्ड कम्यूटेशन, whereas in phase controlled converters you use line commutation, so no commutation circuit required, operation is simple and they are less expensive also. Okay, next point is that natural commutation is used in these phase control converters. Okay, choppers में forced commutation and in this you use natural commutation. Then next point, now what is natural commutation? How natural commutation takes place? So we know that whenever in AC, in every cycle there are 2 times when the voltage becomes 0. One is at omega t is equal to pi 180 degree, other is when omega t is equal to 2 pi. 2 बार AC वेव ऐसे 0 होती है. तो किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जब वोल्टेज 0 हो जाएगा तो वो डिवाइस ऑफ होती है क्या? जरूरी नहीं है कि वो ऑफ हो. ये पॉइंट यहां पर आप प्लीज नोट करिए, ये बारीक चीज है, ये यहां नहीं लिख पाए हैं. डिवाइस ऑफ कैसे होता है? डिवाइस मीन्स सेमीकंडक्टर डिवाइस, मतलब स्विच, सेमीकंडक्टर स्विच. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर स्विचेस, वो भी आप नोट करिए. द
सेमीकंडक्टर स्विच इज व्हाट, कौन कौन से हैं बताओ बताओ जल्दी जल्दी. व्हाट आर सेमीकंडक्टर स्विचेस, मुंह से ही बताओ. SCR, IGBT, यस यस, बीजेटी जिनको बोलते हैं MOSFET, बाइपोलर जंक्शन BJT. ट्रांजिस्टर, हाँ, और मॉसफेट है ना. तो डू यू हैव एनी आइडिया, ये नहीं तो हम लोग एक क्लास रखेंगे कि कौन सा स्विच कब यूज होता है. मैं एक स्लाइड या तो बना दूंगी अभी इस पे, और या फिर वी विल हैव अ क्लास. एवरी स्विच जो है ना, आपको पता है कि एससीआर कौन से ड्राइव में यूज होता है. मीनिंग ये टोपोलॉजी तो यही रहेगी, ब्रिज कन्वर्टर है, बट उसमें एससीआर यूज होगा या आईजीबीटी यूज होगा, या यू विल बी यूजिंग अ लेट अस से मॉसफेट. कैसे डिसाइड होगा? मैम इन्वर्टर्स में मोस्टली IGBT यूज करते हैं मैम, और बिल्कुल उसमें रेक्टिफायर फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से मैम SCR यूज करते हैं. एससीआर, बट व्हाई जीटीओ भी होता है, गेट टर्न ऑफ, है ना. Yes, ma'am. गेट टर्न ऑफ जीटीओ भी होता है, जो बेसिकली एक टाइप का एससीआर ही है. बट ओनली थिंग इज कि वो सेल्फ कम्यूटेटिंग है. डिवाइसेस दो तरह के होते हैं, एक तो जिनमें फोर्स कम्यूटेशन लगता है, और दूसरे वो जो सेल्फ कम्यूटेटिंग है. सेल्फ कम्यूटेटिंग मतलब जैसे जिस जिस सिग्नल से आप फायर करते हैं, सिग्नल हटा लीजिए, सिग्नल हटा लीजिए तो डिवाइस कम्यूटेट हो जाएगी. ठीक है, सिग्नल हटा लीजिए तो डिवाइस कम्यूट, तो उनको बोलते हैं सेल्फ कम्यूटेटिंग. ये आईजीबीटी, मॉसफेट, ये सब सेल्फ कम्यूटेटिंग है. जैसे जो आपकी बेस करंट होती है, बीजेटी भी, ट्रांजिस्टर भी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. सो दीज आर ऑल सेल्फ कम्यूटेटिंग डिवाइसेस. जबकि एससीआर सेल्फ कम्यूटेटिंग नहीं है, है ना. हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक बार गेट सप्लाई देने के बाद, गेट पल्स देने के बाद डिवाइस ऑन ही रहता है. ठीक है, Yes, वो ऑफ कब होगा? जब उसकी करंट होल्डिंग करंट से नीचे चली जाएगी. पढ़ते हैं ना. तो yes, इसका, और जबकि ट्रांजिस्टर वगैरह में ऐसा नहीं है. इफ यू रिमूव द ट्रिगरिंग पल्स, ट्रिगरिंग करंट रादर, उसको बेस ड्राइव बोलते हैं, बेस करंट. सेम चीज इंसुलेटेड गेट, बाइपोलर, मतलब आईजीबीटी भी वही है, इंसुलेटेड गेट, बाइपोलर ट्रांजिस्टर. सो इन ऑल दीज डिवाइसेस इफ यू रिमूव द, उसको हम गेट पल्स ही चलो बोल लेते हैं, जबकि गेट पल्स या जो भी, गेट तो एससीआर में ही होता है, लेकिन उसको अपन ट्रिगरिंग सिग्नल बोल लीजिए. तो इफ यू रिमूव दैट ट्रिगरिंग सिग्नल, देन द डिवाइस बिकम्स ऑफ. एससीआर में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एससीआर इज अ वोल्टेज कंट्रोल, इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस. तो इसमें वोल्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने देखा है ना कि लोड का वोल्टेज कई बार नेगेटिव भी हो जाता है, होता है ना. एससीआर में नेगेटिव वोल्टेज भी तो आता है. तो वो नेगेटिव क्यों? Yes, ma'am. तभी तो अपन इन्वर्शन भी कर पाते हैं ना. अल्फा इज इक्वल टू मोर देन 90. जब अल्फा ग्रेटर देन 90 होता है तो क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज बिकम नेगेटिव. क्यों हो जाता है ऐसा? बिकॉज एससीआर विल कीप कंडक्टिंग. अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे. एज लॉन्ग एज द करेंट थ्रू इट इज flowing. So basically current has to be brought to zero, and rather if not zero, then दो चीजें हैं. SCR दो तरीके से टर्न ऑफ होता है, कम्यूटेट या टर्न ऑफ भी बोलते हैं. दो तरीके से. इट इज अ स्विच. इट टर्न्स ऑन व्हेन यू अप्लाई गेट करंट. अब ऑफ कैसे होता है? ऑफ होता है या तो इसके अक्रॉस एक रिवर्स बायस वोल्टेज लगा दिया जाए, एक चीज हो गई. दूसरा हो गया टर्न ऑफ, अगर उसके थ्रू करंट जो है वो, इसकी एक होल्डिंग करंट होती है. इफ द करंट थ्रू द एससीआर बिकम्स लेस देन होल्डिंग करंट, देन उसमें जो चार्जेस वार्जेस जो फ्लो हो रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं फ्लो होना, तो वो एससीआर ऑफ हो जाता है. मींस इट बिकम्स लाइक ए ओपन स्विच. वो ओपन हो जाता है. स्विच है ना, तो अगर वो कंडक्ट कर रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट है, बिकॉज इट इज अ स्विच. SCR या कोई भी डिवाइस. And when it is not conducting, it is open circuit. Means it is not allowing any current to flow through it. But voltage है उसके across. But current कोई flow नहीं होगा. ठीक है, तो it is like a open circuit. तो ये सारी भी switches के बारे में बातें हैं जो we will I think add a slide on switches also, and we'll discuss it maybe tomorrow or maybe in some other additional class. So we will have a slide about switches जो अपन लोग earlier पढ़ते हैं. अब ये जो next point है natural commutation के नीचे, वो commute उसी से related है. ब्रिज कन्वर्टर में क्या होता है? फेज कंट्रोल कन्वर्टर में as one SCR is triggered, means उसको अपन incoming SCR कहते हैं. तो as one SCR is triggered,
it reverse biases the other SCR जो पहले कंडक्ट कर रहा था and turns it off. तो अपन वो T1, T2, T3, T4 पढ़ते हैं ना, तो अगर T1 और T2 ऊपर के दो डिवाइसेस हैं, तो अगर T1 को ऑन करोगे तो T2 अपने आप ऑफ हो जाएगा, और जब T2 को ऑन करोगे T1 बिल्कुल उसी समय ऑफ हो जाएगा, बिकॉज द टोपोलॉजी या आर्किटेक्चर ऑफ द सर्किट इज सच दैट, ये ब्रिज की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रिज कन्वर्टर की, द टोपोलॉजी इज सच कि जैसे ही एक सर्किट ऑन होता है, एक डिवाइस ऑन होता है, SCR जिसको अपन ने इनकमिंग कहा कि अभी अभी अपन ने उसको ऑन किया, अभी आ रहा है पिक्चर में, तो दूसरा वाला अपने आप ऑफ हो जाएगा, एंड द मोमेंट दूसरा वाला ऑन होगा पहला ऑफ हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स हैं, the power conversion efficiency is more than 90% in these devices. Now, why is it so? Why is the efficiency high? Because there are no commutation losses taking place in the phase controlled converters. No commutation losses. क्या होता है? There are no commutation losses क्योंकि natural commutation है ना, अपने आप डिवाइस ऑफ हो गई. और जब अपन फोर्स्ड कम्यूटेशन करते हैं जैसे चॉपर वगैरह में, तो अच्छी खासी हाई करंट फ्लो हो रही होती है डिवाइसेस में से, लेकिन आप उसको फट से ऑफ कर दो तो वो पूरा पावर कहाँ जाता है? वो लॉस हो जाता है, क्योंकि डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज भी था, करंट भी था. यू फोर्स्ड द डिवाइस टू गो टू ऑफ स्टेट, एंड दैट वोल्टेज एंड करंट इज डिसिपेटेड एज स्विचिंग लॉसेस. उनको हम बोलते हैं स्विचिंग लॉसेस. और आपको ये मालूम होगा कि चॉपर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी स्विच. व्हाट इज अ चॉपर? चॉपर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी स्विच. और इसीलिए जो मैं आपको पहले बता रही थी कि कई जगह टू स्टेज कन्वर्जन करके भी अपन चॉपर ही यूज करते हैं. सोफिस्टिकेटेड ड्राइविंग, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट डबल कॉस्ट और एनीथिंग, बट बिकॉज चॉपर इज अ हाई frequency switch, it gives you a very smooth output voltage waveform. यही उसका एडवांटेज है. यहाँ पे हम अभी नहीं बता रहे हैं ये, क्योंकि अभी हम चॉपर पे नहीं आए हैं. सो वी आर टेलिंग द एडवांटेज ऑफ कन्वर्टर ओनली. ओके, कि कन्वर्टर के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, और इसलिए कन्वर्टर भी यूज होता है. सो अब ये लॉस, मतलब हमें उसमें लॉस वॉस किसी चीज की परवाह नहीं है, कॉस्ट की भी परवाह नहीं है. There are places, there are applications, there are sophisticated where lots of money is concerned about performance. So you don't care. Losses हो रहे हैं, switching losses chopper में कोई बात नहीं. DC available नहीं है, कोई बात नहीं. We will go for AC to DC converter. हम लोग उसको पहले convert कर लेंगे AC को DC में. और अभी ज्यादातर applications में कोई सी भी जो भी ड्राइव्स हैं उसको यही हो रहा है कि AC अवेलेबल तो AC ही है, उसको DC में कन्वर्ट करके फिर हम चॉपर यूज करते हैं. और उसका सिर्फ एक रीजन है कि चॉपर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी स्विच, ड्यू टू विच उसको बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करने से, अब आप समझिए कि आपका ऐसा DC आया लंबा स्ट्रेट लाइन, फिर एकदम से वो कम हो गया. कन्वर्टर की, फेज कंट्रोल कन्वर्टर की करीब करीब आपकी स्क्वायर वेव जैसी बनती है. स्क्वायर स्क्वायर बनते हैं ना, तो स्क्वायर बनता है, मतलब पहले स्क्वायर बना, तो स्क्वायर की बजाय अगर आप टुकड़े टुकड़े में छोटा 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 बारीक 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 अगर आपने ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ किया, तो जो आउटपुट DC आता है, it has got less ripple, it is a very smooth DC, and therefore the DC drive works, DC motor works very efficiently, gives very good performance when chopper is there. So ये बात यही समझ लीजिए कि as compared to AC to DC converter, chopper circuit will become of course very expensive and all, but technically the DC available from chopper is much near to the ideal DC as compared to the DC which is available from phase controlled converters. And the reason is simple, ripple is less. रीजन इज सिंपल कि चॉपर में आप बहुत जल्दी जल्दी टी ऑन टी ऑफ ऐसे करते हैं ना, तो उसकी वजह से जब उसकी अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो एक बेटर DC होता है एज कंपेयर टू एक लंबा बहुत देर तक ऑन और उसके बाद बहुत देर तक पूरा ऑफ, या फिर दूसरा वेव आएगा. AC टू DC कन्वर्टर AC को काट काट के DC बनाता है, तो नेचुरली ऐसा 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 आता है इसमें. चॉपर में हम छोटे छोटे स्क्वायर ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में. तो इसलिए इतनी बात अभी समझ लीजिए कि चॉपर का जो आउटपुट होता है, इट इज अ बेटर DC एज कंपेयर टू, मींस लेस रिपल
as compared to the DC available from a phase control converter. ये बात गांठ बांध लीजिए. बट अभी हम कंट्रोलर इसी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि हम अभी ये पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो वील टॉक अबाउट. और ये जो चीजें ये भी सही हैं, ये इसके लिए सही है. हर जगह आप छोटी सी जगह पे आप वो चॉपर का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ये भी यूज हो रहा है सब जगह, है ना. आईफोन जो है वो 4-5 हजार से लेके 2-2 लाख रुपए तक भी है. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सस्ते वाले कोई यूज नहीं कर रहे, अब वो ये स्मार्टफोन कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं. एवरीबडी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट में एप्लीकेशन है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन बजट, डिपेंडिंग ऑन सोफिस्टिकेशन, डिपेंडिंग ऑन कहाँ क्यों यूज कर रहे हैं हम. सो नाउ ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए. नेक्स्ट इज द पीसीसी, मतलब ये जो कंट्रोल रेक्टिफायर है, इट इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ वाइड रेंज ऑफ डीसी मोटर्स. ये बहुत फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, छोटी छोटी मोटर से लेके लार्ज मेगावाट रेंज मोटर्स तक ये यूज हो सकता है. वेरिएबल स्पीड, रिवर्सिबल ड्राइव्स इन रोलिंग मिल्स एटसेट्रा, बहुत बड़े बड़े ड्राइव्स में ये यूज होता है. ठीक है. अब अगर स्विचेस की बात करें तो यहाँ हम क्योंकि बता ही रहे हैं तो आई विल टेल यू कि SCRs आर अवेलेबल इन वेरी हाई रेंजेस. SCR has got SCR and GTO ranges are in kilowatt range. The devices are available in kilowatt, kiloampere range. Whereas MOSFET etc., MOSFET IGBT has limitations of rating. उनकी रेटिंग्स इतनी हाई नहीं हो पाती हैं. तो बहुत हाई पावर ड्राइव में हमेशा आप SCR या GTO ही यूज करेंगे. High power drives में you cannot go for these other self commutating devices. ये सब devices जो हैं ये low rating में होती हैं. फिर MOSFET का GTO या इन सबसे advantage क्या है कि MOSFET can be worked as a very fast switch. उसका turn on turn off time बहुत least होता है. MOSFET is fastest, मतलब उसको ऑन करके फटाक से दोबारा ऑफ किया जा सकता है, जबकि इन डिवाइसेस को ऐसा नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि आपको उसको तब तक ऑफ रखना पड़ता है जब तक उसने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी अचीव नहीं कर ली है. सो दीज स्विचेस SCR etc. are slow, choppers are very these MOSFETs are very fast, and IGBT and transistor family दोनों के बीच में है और पावर भी उसकी बीच में है. तो SCR is a high power application, IGBT transistor is a medium power application, and MOSFET लो पावर एप्लीकेशन. अब अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो MOSFET लो पावर बट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, IGBT वगैरह मीडियम फ्रीक्वेंसी, मीडियम पावर, मीडियम फ्रीक्वेंसी, एंड SCR हाई पावर बट फ्रीक्वेंसी इज लो. मतलब इसको बार बार ऑन ऑफ नहीं कर सकते आप, और फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी तो वेवफॉर्म आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा. If you have a very high frequency converter, तो you eliminate many of the harmonics etc. ठीक है. So from अब ये इसके बहुत वाइड रेंज में यूज हो सकता है. और phase control converters are used with DC series and separately excited motors mostly. ठीक है. Then the next slide, types of, ये आपको मालूम ही है but again I am revising, types of single phase converters. Okay, single phase controlled converters. ये कितने टाइप के होते हैं? सिंगल फेज हाफ वेव, ठीक है, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर. और अगर मोटर कंट्रोल हो रही है तो ड्राइव भी बोलेंगे सिंगल फेज हाफ वेव, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर और ड्यूअल कन्वर्टर. एंड इनमें कितने कितने SCR होते हैं ये सामने लिखा है. हाफ वेव कन्वर्टर में ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इज कन्वर्टेड टू DC. द नेगेटिव हाफ साइकिल के पीरियड में द कन्वर्टर इज गिविंग आउटपुट 0. मतलब नेगेटिव साइकिल में कन्वर्टर वर्क ही नहीं कर रहा है क्योंकि देयर इज ओनली वन SCR. सेमी कन्वर्टर, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर हैज गॉट 2 SCRs and 2 diodes. SCR की जगह हम स्विच कह सकते हैं, कोई भी स्विच. सो बिकॉज ऑफ डायोड नो नेगेटिव वोल्टेज कैन कम इन सेमी कन्वर्टर. तो सेमी कन्वर्टर इज देयरफॉर अ सिंगल क्वाड्रेंट स्विच. आगे हम देखेंगे इसका वोल्टेज नेगेटिव नहीं हो सकता. तो मतलब क्या रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो पाएगी क्या इससे? नहीं. जब भी कभी डायोड कहीं है, डायोड विल परमिट द फ्लो ऑफ करंट ओनली, फ्लो ऑफ मतलब डायोड विल ब्लॉक द रिवर्स वोल्टेज.
जबकि SCR does not block the reverse voltage. SCR can keep conducting in the reverse direction. SCR conduct करेगा, ये करंट पे डिपेंड करेगा, करंट पे, नॉट वोल्टेज पे, और डायोड का वोल्टेज पे. जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ डायोड, डायोड इज ऑन. डायोड इज व्हाट? अनकंट्रोल्ड स्विच. डायोड is an uncontrolled switch. SCR is a controlled switch. Triac is a doubly controlled, दोनों तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. So in case of diode, whenever there is a diode, तो regenerative braking is not possible. So single phase semi-converter cannot be used for motors which have to operate in two quadrant. क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मोटरिंग ही होगी ना. अगर ब्रेकिंग करनी है तो या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओ या फोर्थ में जाओ, तो इसमें तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं. सो दैट मीन्स in a single phase semi converter drive you cannot use any type of, you cannot use braking इस कन्वर्टर के साथ. या तो मैनुअल ब्रेकिंग करिए, बट सेमीकंडक्टर ब्रेकिंग नहीं कर पाएंगे आप, कंट्रोल्ड ब्रेकिंग नहीं कर पाएंगे. ठीक है. देन देयर इज सिंगल फेज फुल कन्वर्टर, उसमें चारों SCR होते हैं. ठीक है. सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर में ये फुल कन्वर्टर बैक टू बैक कनेक्ट रहते हैं, मतलब एक सीधा एक उल्टा और बीच में लो. ठीक है. सो इन दिस वे देयर आर 8 SCRs. देन वी कम टू टाइप्स ऑफ, और जो सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर है वो 4 क्वाड्रेंट कन्वर्टर होता है, वो पूरे 4 क्वाड्रेंट में वर्क कर सकता है. ठीक है. देन वी कम टू 3 फेज कन्वर्टर्स. 3 फेज में एक होता है हाफ वेव कन्वर्टर, 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर. ठीक है. दूसरा होता है 3 फेज सेमी कन्वर्टर, जिसमें 3 SCRs होते हैं, सिर्फ 3 SCR. हाफ कन्वर्टर में क्या होता है? 3 डायोड, ओनली 3 डायोड्स. तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, यू आर ओनली डूइंग लाइक दिस 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 दिस. क्योंकि डायोड तो बिल्कुल ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे ऑन हो जाएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 पे ऑफ हो जाएगा. बस कोई फायरिंग एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, उसका ऑन ऑफ बिल्कुल फिक्स्ड है. ठीक है. सिमिलरली 3 फेज फुल कन्वर्टर में 6 SCR होते हैं. 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर जो होता है, T1 T2 T3, उसी का वैसे ही इन्वर्टर भी होता है, अगर उल्टा लगा दिया तो इन्वर्टर बन जाता है. 3 फेज ड्यूअल कन्वर्टर में 3 फेज फुल कन्वर्टर बैक टू बैक लगाए जाते हैं, 2 कन्वर्टर बैक टू बैक. ठीक है. सो वी विल स्टडी अबाउट दिस आर्किटेक्चर. सबका आर्किटेक्चर आपको याद होना चाहिए बिल्कुल. मैं कुछ क्लास में भी कराऊंगी, बट एट योर होम ऑल्सो आप अपनी पुरानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबें खोल के ये जितने भी टाइप के कन्वर्टर हैं, हमेशा के लिए फॉर एवर इनके बीच का सारा कंफ्यूजन खत्म कर दीजिए. एक बार अपने दिमाग में रख लीजिए कि कौन सा कन्वर्टर क्या है, किसको फुल बोलते हैं, किसको सेमी बोलते हैं. और फुल वेव अलग है और फुल्ली कंट्रोल्ड अलग है. देखिए, फुल वेव मतलब जो AC की दोनों साइकिल्स को कंट्रोल करता है. हाफ वेव मतलब जो आधी साइकिल को कंट्रोल करता है, AC की ओनली पॉजिटिव साइकिल को. ठीक है. और फुल कंट्रोल का मतलब हो गया, फुल कंट्रोल और सेमी कंट्रोल अलग चीज है. फुल कंट्रोल मीन्स जो नेगेटिव वोल्टेज भी जिसमें आ सकता है, और सेमी कंट्रोल मीन्स जिसमें वोल्टेज नेगेटिव नहीं, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कन्वर्टर नेगेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है. अभी हमारी लिंक थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको छोटी सी एक और लिंक दूंगी. 10-15 मिनट के लिए हम एक और सेशन करेंगे. बीच में 1-2 मिनट का अगर ब्रेक आएगा तो आप उसको, हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो जाए खुद ही, पर अगर नहीं हुआ तो मैं आपको लिंक दे दूंगी एक और, तो यू बी देयर ओनली. अब एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज कन्वर्टर्स, इनके अब सिंगल और 3 फेज में क्या अंतर है. सो दीज आर द एडवांटेजेस. इसका आउटपुट वोल्टेज जो है उसमें लेस रिपल होता है. आउटपुट DC जो है 3 फेज का वो बेटर क्वालिटी का होता है. देयर इज लेस रिपल एंड देयरफॉर रिपल को हटाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है हमें? फिल्टर. रिपल्ड DC को आइडियल DC बनाने के लिए व्हाट डू वी डू? वी यूज अ फिल्टर. So the size of the filter etc. becomes smaller. अगर कम रिपल है तो देन क्या होता है? फिल्टर भी छोटा चाहिए, तो कॉस्ट भी कम हो गई, कॉम्प्लिकेशन भी कम हो गया. So this is the advantage of a 3-phase converter. Second point is it is used for large rating drives, 15 kilowatt or above. In general भी 3-phase जो मोटर होती है उसमें उतना ही कॉपर या एल्यूमिनियम आप लगा के ज्यादा कैपेसिटी की, मतलब उतना ही मटेरियल लगा के अगर एक सिंगल फेज मोटर बनाएंगे और उतना ही मटेरियल